Presentation skills. Session 3 listening. हम अपनी आज की क्लास में असर्टेन करने की कोशिश करेंगे कि लिसनिंग बेसिकली क्या चीज है और व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लिसन व्हेन somebody talks to us. Is it only important to just talk, or do we need to have this skill of listening as well? So, is this listening a part of a good communication process? What if we do not pay importance to somebody who is actually talking to us? उसका क्या नुकसान होता है? हम इस चीज को असर्टेन करने की कोशिश करेंगे. इस चीज को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. आप लोग एक लम्हे के लिए जरा सोचिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग. Because when we are actually hearing some sounds, and when we say listening, in listening we also get to hear some sounds. So what is the difference between hearing and listening? So can you discriminate? Can you distinguish the difference between hearing and listening? This is a very interesting question because as far as today's topic is concerned, which is listening, so when we are in the process of communication, the important thing is not to hear somebody, rather to listen somebody. Because when we try to hear somebody, we are just only hearing the voice. We will just get to know that somebody is actually talking to us, but we will not exactly understand and interpret anything which is being said to us. But when we apply the process of concentration, then the actual process of listening gets to start. तब listening का मरला तब जाके शुरू होता है. Listening एक important factor है because अगर आप अपनी लाइफ से listening को subtract कर देंगे तो आप चीज़ों के ऊपर बिल्कुल प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे. अगर आप टीचर हैं और अगर आप अपने क्वेश्चंस को अपने अपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को if you do not pay importance, if you do not listen to the questions which are being asked, then as a teacher you will not be communicating the confusions, various confusions which the students might have in their minds. Likewise, when as a parent, when you are talking and talking and talking, and there is something which your child is trying to tell you, but you're not paying importance to that, even in that situation, there is a big flaw in the process of communication. Because listening, until unless you will not understand what the other person is trying to talk, you will not get to know where exactly this direction communication has exactly to be led. जब हम किसी शख्स से बात करते हैं और हम जब अपना कम्युनिकेशन का प्रोसेस, जैसे हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में स्टडी किया था, कि जब एज ए स्पीकर हम अपनी मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं लिसनर की तरफ, और लिसनर उसके जवाब में कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें फीडबैक देता है. फीडबैक हमें इस चीज को समझने में मदद देता है that whether if the audience is actually understanding the message in exact context in which we are trying to communicate, or there is some difference in the understanding level and the actual intent which the speaker is trying to communicate. So exactly how we ascertain that our listeners are exactly grabbing the same point which we are trying to communicate is when we get the feedback. So it is very important that we give importance to whatever is being replied by the audience, because वो जो feedback आ रहा है उसी से हम अखज़ करेंगे कि आया हमारा जो मैसेज था वो उसी कॉन्टेक्स्ट में रिसीव किया जा रहा है. अगर तो यस, तो फिर तो हम कम्युनिकेशन को आगे चलाएंगे. अदरवाइज हमें उस कम्युनिकेशन के बैरियर को दूर करना चाहिए, बिकॉज वरना कम्युनिकेशन एक बैरियर है. इस एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो रेजिस्टेंस आई है, उस रेजिस्टेंस को हमें खत्म एलिमिनेट करना चाहिए, ताकि हमारी ऑडियंस एग्जैक्टली सुन सके जो हम बेसिकली उनसे कहना चाह रहे हैं. कम्युनिकेशन वो दुनिया है कि जिसके बगैर आपकी तमाम एजुकेशन बेकार है. आप भले कितने अक्लमंद हैं, भले कितने पढ़े लिखे हैं, भले कितने एजुकेटेड हैं, अगर आप में इस लिसनिंग की सलाहियत नहीं है, सो आप बेसिकली अच्छे कम्युनिकेटर बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज इस कॉन्टेक्स्ट में ये होगा कि आप अपनी बात जो कि आपके अपने जहन में, वो तो आप कम्युनिकेट करेंगे लोगों को, लेकिन अगर आपके अंदर लिसनिंग की पेशेंस नहीं है, बिकॉज लिसनिंग अपनी ज़ात के अंदर पेशेंस मांगता है, और
इंसान को सोशल एनिमल कहा गया है। अगर आप किसी शख्स की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आप बेसिकली अपनी रिस्पेक्ट को खुद उसकी नज़रों में कम जाके कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लिसन टू पीपल, बिकॉज वी माइट be ignoring the person by not paying importance to whatever is being said to us, but we are not only bringing a bottleneck in the process of communication by that, but also we are losing our own respect, we are losing our own dignity in the eye of that person who is now finding out that we are not paying any heed to whatever that person is trying to tell us. So कम्युनिकेशन की दुनिया में जो लिसनिंग की इम्पोर्टेंस का अंदाजा जैसा भी हमने शेयर किया कि एक टीचर के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है लिसनिंग की, और इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिसनिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है, और पेरेंट्स के लिए लिसनिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है। इसी तरीके से अगर आप कोर्ट रूम के अंदर हैं और जज आपकी बात को सुनने के लिए वहां बैठा है, दो वकील वहां पे केसेस को लड़ने के लिए वहां पे कोर्ट रूम में आते हैं, और जो जज है इवेंचुअली उसने जाके अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर, उन फैक्ट्स के बेसिस पर जो कि उसको फैक्ट्स कम्युनिकेट किए जाएंगे, उसने उस सिचुएशन का एनालिसिस करना है, उस केस को एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है, जो कि उसके पास, उस जज के पास, उन जज साहब के पास होगा, उन फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर और उन लीगल फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर जो कि उनको कम्युनिकेट करेंगे वकला, वकील, जो कि आपस में आर्गुमेंट्स कर रहे होंगे, उसकी बेसिस के ऊपर जज बेहतर पोजीशन में होंगे एग्जैक्टली असर्टन करने के लिए कि कौन सी पार्टी गिल्टी है और कौन सी पार्टी इस वक्त हक पर है। लेकिन इवेंचुअली जज का काम इंसाफ की फराहमी करना है, जज का काम हक और सच की बात को आगे करना है। until unless judge is not ready to listen, then there is a very bleak chance that there is going to be the spread of justice. Therefore, it is very important as a judge that we have patience to listen to the barristers, to the advocates who are trying to litigate, who are trying to let us know the facts of their respective clients. उसी की बिना पर हम इस चीज को अखज कर सकेंगे एज अ जज कि हमने किस वाले क्लाइंट को हमने इंसाफ फराहम करना है। बिकॉज दोनों पार्टियां जो कोर्ट पे केसेस लड़ने के लिए आती हैं, वो दोनों ही केस के शुरुआत में दोनों के दोनों ने वकील के ही इस वजह से होते हैं बिकॉज दोनों के दोनों अपने आप को सही साबित करवाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो जज है उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक जिम्मेदारी है, एक रोल है जो कि जज को प्ले करना होता है। जज इस चीज को अखज करता है, असर्टन करता है कि आया विच पार्टी इज ऑन द राइट ट्रैक। तो हमने जज की एग्जाम्पल से भी देखा कि लिसनिंग की इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बगैर लिसनिंग के अगर आप एक जज भी किसी की बात को सुनेगा नहीं, सो जज फिर सही फैसला करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो कुछ एग्जाम्पल थी जिसकी बिना पर हमने ये जाना कि लिसनिंग की इम्पोर्टेंस बेसिकली क्या है, लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और लिसनिंग की ज़रूरत बेसिकली क्यों पेश आती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर। अब जबकि हम ये जान चुके हैं कि हमें लिसनिंग करनी है और लिसनिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें करना होता है, सो to become an effective listener, let's try to find out that what are the various important approaches to listening which are there in the market. So हमारे कोर्स आउटलाइन के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग के बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अप्रोचेस टू लिसनिंग का, कि लिसनिंग की अप्रोचेस क्या है। ये भी एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लिसनिंग का। एजुकेशन की खूबसूरती यही है कि किसी एक पॉइंट को इतना ज़्यादा बाइफरकेट कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा माइक्रो लेवल पे उसके छोटे छोटे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको इवैल्यूएट किया जाता है कि जिसकी बेसिस के ऊपर लोगों के लिए इसका समझना आसान हो जाता है कि भाई कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उस प्रोसेस के अंदर कि जिनको अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो किन किन तरीकों से उनको जाके इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन की दुनिया में जिन लोगों ने काम किया है लिसनिंग के ऊपर, उन लोगों ने लिसनिंग की 4 इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस बताई। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस टू लिसनिंग। फर्स्ट अप्रोच टू लिसनिंग इज, अगर ये अच्छा मजे की बात, ये जो अप्रोचेस टू लिसनिंग है फोर्ब्स मैगजीन में भी कोट हो चुकी हैं।
और फोर्ब्स मैगजीन के अंदर, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन है, उसमें भी ये कहा गया कि भाई ये एक इम्पॉर्टेंट, देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस टू लिसनिंग, जिनको अगर आप मद्देनजर रखते हुए किसी को सुनने की कोशिश करेंगे तो आप बेहतरीन लिसनर अपने आप को प्रूव करने में कामयाब होंगे। पहला है इसके अंदर लिसनिंग थ्रू ईयर्स, अपने कानों से चीजों को सुनना। तो ये तो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जब तक हमें किसी शख्स की आवाज नहीं आ रही, जब तक हम किसी को चीज को हेयर नहीं कर सकते, तब तक हम उस चीज को प्रॉपरली उसको सुन नहीं सकते। हेयरिंग एंड लिसनिंग, सब लिसनिंग के प्रोसेस, लिसनिंग इज द सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज हेयरिंग। when we are able to hear somebody, then we are able to only include our mind and exactly listen to the person who is actually talking to us, and then we will try to ascertain that what are the various logics that person is building up, what are the various grounds on the basis of which the person is actually trying to build those points. And then based on that, we are going to do our own analysis within our mind to ascertain that whether if whatever is being said is making sense or that is just a random talk. So ये होता है लिसनिंग के प्रोसेस के अंदर, कि जब हम सबसे पहले स्टेप के अंदर हम लोग अपने कानों से आवाज को सुनते हैं, लिसनिंग थ्रू ईयर्स। लिसनिंग थ्रू ईयर्स के अंदर हम बेसिकली इस चीज को एक जो सबसे पहली अप्रोच है उसके अंदर हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो इस चीज को देते हैं कि हमें प्रॉपर आवाज आ रही है सामने वाले बंदे की, और जो सामने वाला बंदा जो हमसे बातें कर रहा है उसकी प्रॉपर ना सिर्फ हमें आवाज आ रही है, बस उसके साथ साथ हम अगर तो वो हमारे सामने मौजूद है तो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी प्रॉपरली नोटिस कर सकते हैं, हम उसको एग्जैक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं कि भाई वो किस वक्त किस तरीके से किन किन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसकी बेसिस के ऊपर हम इस चीज को अखज़ करते हैं। ये सेकंड अप्रोच जो अभी हम पढ़ेंगे इसकी लिसनिंग की, लिसनिंग थ्रू एयर। में सबसे पहले हम अगर हम तरतीबवार चलें, लिसनिंग थ्रू एयर में हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि हमें प्रॉपरली आवाज आ रही है, we can get to hear the voice of the person who is actually talking to us. And in the second point, we listen through eyes. The second important approach to listening, effective listening, is actually listening through eyes. So ये अब यहाँ पे अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होना शुरू हो गई, बिकॉज स्टार्टिंग में जब हमने लिसनिंग थ्रू ईयर कहा होगा तो उस टाइम पे कई लोगों के लिए सरप्राइज हुआ होगा, क्योंकि हम इवेंचुअली वी गेट टू लिसन थ्रू आवर ईयर्स, बट डिफरेंस इस तरीके से हम लोगों ने इसके बीच में इंक्लूड किया था कि जो हम सिर्फ जो आवाज को हम सुनते हैं वो हेयरिंग होती है। लिसनिंग तब बनती है जब उसके अंदर हम अपना इंटेलेक्ट इन्वॉल्व करते हैं। तो जब हम हेयरिंग के अंदर अपना ब्रेन इन्वॉल्व करते हैं तो उस वक्त फिर हमारा इंटेलेक्ट उसमें इंक्लूड होना शुरू होता है, और बेस्ड ऑन दैट वो जो हेयरिंग का प्रोसेस है वो लिसनिंग के प्रोसेस में जाके कन्वर्ट होता है। और सेकेंड प्रोसेस के अंदर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट अप्रोच है लिसनिंग की, वो है बेसिकली लिसनिंग थ्रू आईज। लिसनिंग थ्रू आईज के अंदर जब हम इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि जो शख्स हमसे बात कर रहा है वो बात करते हुए उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो जब जिन अल्फाज को अदा कर रहा है क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट कर रही है उन बातों को करने के लिए या नहीं। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल किसी की फ्यूनरल पे जाता है और वो फ्यूनरल पे जाके मुस्कुराते हुए हंसते मुस्कुराते हुए बिल्कुल रिलैक्स मूड के अंदर किसी से कंडोल करता है, तो ये समझना आसान हो जाएगा कि जो सामने वाला बंदा जो हमसे कंडोलेंस कर रहा है वो बंदा बेसिकली सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को पूरी कर रहा है, वो एक्चुअली कंडोलेंस नहीं कर रहा। बिकॉज अगर वो एक्चुअली कंडोल कर रहा होगा तो उसकी आवाज में डिफरेंस होगा, उसकी आईज के अंदर एक फीलिंग ऑफ सैडनेस होगी, उसके बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक हम्बलनेस होगी। ये तमाम डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम लिसनिंग टू आईज के अंदर हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो हमारा जो शख्स हमसे बात कर रहा है वो सिंसियरली बात कर रहा है। लिसनिंग थ्रू आईज में हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को, हमारा जो सामने बंदा हमसे बात कर रहा होता है, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के हम उसकी सिंसियरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि आया जो बंदा बात कर रहा है उसके फेशियल एक्सप्रेशन उसका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसकी आवाज, उसके एक्सप्रेशन, उसकी आवाज के एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ साथ the expressions in his sounds are also supporting him in delivering that message or not. So it is very important that when we talk, not only our facial expressions are supporting our talk, but also, I mean, our expressions in our voice are also supporting us. Because if our voice is not having expressions regarding the message, related to message, then even then there is going to be a noise. तो जो सामने वाला बंदा होगा वो हमारी बात को प्रॉपरली
नहीं सुन पाएगा, बिकॉज वो ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे उसके जहन में, वो ये इस चीज पे ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा कि उसकी बात को जब जब सामने वाला स्पीकर हमसे बात कर रहा है, जिस सामने वाला स्पीकर हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फॉर्मेलिटी तो पूरी कर रहा है, लेकिन उस बात का जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है, जो असल मकसद है उस बात का, जो स्पिरिट ऑफ दैट कम्युनिकेशन है, दैट इज नॉट बीइंग मेट बाय दैट स्पीकर. सो देयरफॉर जब हम लिसनिंग थ्रू आईज की बात करते हैं, तो उस वक्त अभी हमने जैसे कि देखा, हमने अभी सुना जाना कि लिसनिंग थ्रू आईज के अंदर हम इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो शख्स हमसे बात कर रहा है, आया कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करके सिर्फ हाँ या ना कर रहा है, या बाकी he or she means to us. I mean, वो हमें he or she is actually giving us importance as well, because only then you will be interested in talk. Otherwise, you will not be interested in talking at all. You see, अगर आपको सामने वाला बंदा जेन्युइन आपके अंदर इंटरेस्ट लेके सिंसियरिटी के साथ आपकी बात को सुनेगा, और सिर्फ तब आप उसकी बात आपका भी उससे बात करने का मन करेगा, वरना आपका उससे बात करने का जी नहीं चाहेगा, बिकॉज एवरीबडी हैज गॉट सेल्फ रिस्पेक्ट. सो बिल्कुल जैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऐसे दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को प्रॉपर्ली सुने, तो आपको लोगों की बात को प्रॉपर्ली जाके सुनना होगा. और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, तो हाँ, आपको भी लोगों को रिस्पेक्ट होनी होगी, और आपको प्रॉपरली अटेंशन के साथ पूरे अटेंटिव प्रोसेस को आप जाके अप्लाई करना होगा, और उसके बाद जाके सामने वाले बंदे को अपने इस चीज का एहसास दिलाना होगा दैट द अदर पर्सन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव स्टॉप्ड एंड यू हैव स्टार्टेड गिविंग importance or due consideration to the message which that when you are trying to share that message with whoever the listener is. So अच्छा, तो ये सेकंड हो गई अप्रोच हमारे अभी लिसनिंग की. फर्स्ट अप्रोच जो हमने पढ़ी वो थी बेसिकली लिसनिंग थ्रू एयर. लिसनिंग थ्रू एयर के अंदर हम इस चीज को इंश्योर कर रहे थे कि जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारी आवाज जो सामने बंदा बात कर रहा है उसकी आवाज हमारे कानों तक प्रॉपर्ली पहुंच पा रही है. लिसनिंग थ्रू आईज के अंदर हम इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि सामने वाला बंदा जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और वो किस बॉडी लैंग्वेज के साथ हमसे बात कर रहा है. तीसरा जो थर्ड इंपॉर्टेंट अप्रोच है लिसनिंग की, वो है माइंड, लिसनिंग थ्रू माइंड. अब ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हेयरिंग और लिसनिंग प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में जाके डिस्टिंग्विश हो रही है. लिसनिंग थ्रू एयर में हमें प्रॉपरली आवाज आ रही थी. लिसनिंग थ्रू आईज के अंदर हमने जो स्पीकर था उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी हमने इंश्योर कर लिया कि जब स्पीकर हमसे बात कर रहा है तो वो ही एक्चुअली वांट्स टू टॉक, और whatever the message that person is trying to communicate, he is or she is genuinely wanting to communicate that message. बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आवाज, तमाम की तमाम चीजें उसके उस मैसेज को सपोर्ट करें, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट डिस्कशन एट ऑल. आप सिर्फ तब इंपॉर्टेंस देंगे इस डिस्कशन को जहाँ पे आपको खुद को नजर आएगा कि आपकी बात को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और सामने वाला बंदा आपकी बात को इंपॉर्टेंटली अकॉर्डिंगली सुन रहा है. लिसनिंग थ्रू माइंड में फिर ये होता है कि हम सामने वाला जो बंदा है उसकी बात को हम एग्जैक्टली इवेल्युएट करना शुरू करते हैं अपने माइंड के अंदर. वो तो कुछ ना कुछ रैशनल्स की बेसिस के ऊपर कोई पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है स्पीकर, कोई ना कोई पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा होता है. अब हम जब लिसनिंग थ्रू माइंड की बात करते हैं, तो इसमें हम इस चीज पे पहुंचते हैं, इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि लिसनिंग थ्रू माइंड के अंदर होता यह है कि हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो सामने वाला बंदा हमसे बात कर रहा है, वो बात हमें प्रॉपरली समझ में आ रही है. बिकॉज अगर हमें वाकई सामने वाले बंदे की बात को समझना है, तो इस प्रोसेस के लिए हमें माइंड को अप्लाई करना होगा. बिकॉज अगर हम माइंड को अप्लाई करेंगे तभी जाके हम इंटेलिजेंट जो डिस्कशन होगी हम उसको जाके समझ सकेंगे. आम जो कम्युनिकेशन है जिंदगी की, वो तो शायद हम समझ पाए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बैठे हुए हैं जहाँ पे लोग माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, आप इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, आप इसको डिस्कस कर रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी का क्या यूज होता है इसको डिस्कस कर रहे हैं, आप बेसिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल के साथ साथ आप ये देखते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. तो ये वो चीजें हैं जिसके लिए आपको सिर्फ हेयरिंग के लिए की जरूरत नहीं है, आपको लिसनिंग, बल्कि जेन्युइन लिसनिंग की जरूरत है, और आपको जेन्युइन लिसनिंग के साथ साथ आपको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आपको करनी आनी चाहिए. तो इस प्रोसेस के लिए आपको माइंड की जरूरत है, और आप माइंड अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपको इस यहाँ पे ऐसी जगहों पे कम्युनिकेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए आपका अपना होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए. आपको खुद को इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर पता होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज
which that economist is trying to deliver, or that economist is trying to communicate to you. So ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया लिसनिंग का, लिसनिंग थ्रू माइंड। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप अक्सर क्लास के अंदर ही बैठे होते हैं तो बच्चे सामने बैठ के अटेंटिव बज़ाहिर बैठे होते हैं उस सामने, और बज़ाहिर आपको लगेगा कि शायद वो आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन जब आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बिल्कुल लॉस्ट होते हैं। सो तब आपको जाके पता चलता है कि जो बज़ाहिर क्लास में बच्चे खामोशी से बैठ के आपकी बात को सुन रहे थे, जो मुस्तकिल दे वर लुकिंग एट यू एंड दे वर apparently paying all the attention they had, I mean, all the attention they could have paid, they were apparently paying that attention, but exactly they were listening to you or not, this you get to know when you start asking questions. क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि जब सामने वाला बंदा आपकी बात को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपकी बात को समझ नहीं पाता, सामने वाला बंदा आपसे कहेगा कि आप जब आप एज ए टीचर अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से और स्टूडेंट जो वहाँ पे बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बजाय प्रॉपर अटेंशन के साथ आपकी बात को सुन रहा था, तब आपको जाके पता चलेगा कि वो बंदा क्लास में तो मौजूद था मगर मेंटली वो शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं था, और या मेंटली वो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद नहीं था, बिकॉज ऑफ दैट वो आपके क्वेश्चन को, वो टीचर के क्वेश्चन को प्रॉपर्ली जाके एड्रेस नहीं कर पाया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके जरिए हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि सामने वाला बंदा हमारी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस चीज को करने के लिए हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग हम बेसिकली क्रॉस क्वेश्चनिंग में के जरिए हम इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, सामने वाला बंदा हमारी बात को इक्वली अंडरस्टैंड भी कर पा रहा है, ओनली देन यू विल बी एबल टू, or you would like to communicate or discuss further points which you have in your mind. Otherwise, when you will get to know that your message is totally not being interpreted at all, or the other person is either having low intellect level, because of which that person cannot interpret your message, or that person is not having any interest in your in you. That's the reason why that person is not understanding or whatever you're trying to tell to that person. सो इन चीज़ों को सम करने के लिए हमें बेसिकली माइंड को जाके इन्वॉल्व करना होता है, और माइंड को इन्वॉल्व करने के बाद ही हम जाके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो मैसेज हम तक कम्युनिकेट किया जा रहा है उस मैसेज की लॉजिक क्या है और उस मैसेज को करने का बेसिकली मकसद क्या है, और वो मैसेज को मतलब उस प्रोसेस को उस कम्युनिकेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी जगह पे कोई स्पीकर गलत बात करेगा या कोई ऐसी वीक बात करेगा जहाँ पे उसकी करेक्शन की जरूरत है, तो वो तभी जाके हम सिर्फ वो करेक्शन कर पाएंगे अगर हम माइंड को भी उस लिसनिंग के प्रोसेस में एंगेज करेंगे। बिकॉज अगर हमने माइंड को उस लिसनिंग के प्रोसेस में एंगेज नहीं किया होगा, सो देयर इज गोइंग टू बी नो यूज एज उस कंडीशन में जो लिसनर हो, जो स्पीकर होगा, वो तो अपनी बात करता जाएगा, और जब उसको पता होगा कि वो कुछ गलत पॉइंट्स भी डिस्कस कर रहा है तो सामने वाले बंदे उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहे, तो उसके जहन में आ जाएगा कि जो ऑडियंस सामने बैठी हुई है वो एक डम्ब ऑडियंस है और वो उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा जो भी उसको कहा जा रहा है। तो इस वजह से अगर आप अटेंटिव ऑडियंस होंगे, अगर आप अपनी माइंड के साथ वहां पे बैठे होंगे और अपने माइंड के साथ चीजों को इवेल्यूएट कर रहे होंगे, तो आप इवेंचुअली फॉरन जाके वहां पे रिस्पॉन्ड करेंगे, और फिर स्पीकर को भी अलर्ट होना पड़ेगा कि दैट स्पीकर कैन नॉट टॉक हेवायर. Speaker will have to be attentive, because if the speaker will not be attentive, then he will be accountable for whatever he is actually trying to talk, because there's an audience who is sitting in front, and that audience is an intellectual audience. So you'll have to prove that you are an intellectual audience, only and only then that process of communication is going to get beautified. So third important approach जो हमने पढ़ी अभी listening की, वो है basically listening through mind. Listening through ear हमने सबसे पहले पढ़ा, फिर लिसनिंग थ्रू आईज हमने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज को इवेल्युएट किया था स्पीकर की। लिसनिंग थ्रू माइंड में फिर हम बेसिकली अपने माइंड को इन्वॉल्व करते हैं लिसनिंग के प्रोसेस के अंदर, ताकि हम इस चीज को इंश्योर करें कि जो भी स्पीकर बातें कर रहा है, नंबर एक वो बातें हमें प्रॉपर्ली समझ में आ रही हैं, नंबर दो अगर किसी जगह पे स्पीकर की किसी बात में कोई लूप होल होगा, तो उस कंडीशन में हम उस लूप होल को ब्रिज करने के लिए हम वहां पे बीच में इंटरवीन करेंगे, और हम उसमें करेक्शन या तो हम वहां पे इंटरवीन करेंगे, उस इंटरवीन करने की वजह से या तो हमारी खुद की करेक्शन हो जाएगी, या फिर हम बेसिकली स्पीकर को जाके करेक्ट कर देंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी ओनली पॉसिबल इफ वी इन्वॉल्व the process of mind, if you also involve the mind in the process of listening.
So the next important point in this, in this listening is listening through heart. अच्छा, many times listening through heart का क्या मतलब है? This is the fourth important approach to listening, which is listening through heart. Uh, अक्सर औकात हमें इस चीज की तब सबसे बेस्ट एग्जांपल या सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि जब जब भी कोई शख्स किसी भी सर्टेन कोई काम को करता है और उसके पीछे कोई ना कोई उसके सर्टेन काम को करने के पीछे कोई ना कोई ट्रिगरिंग रीजन होते हैं। कई मरतबा कोई इंसान कई क्राइम कर देता है, वो क्राइम वो करना नहीं चाहता, लेकिन वो क्राइम करने के पीछे कुछ ट्रिगरिंग रीजन थे, कुछ ऐसी लॉजिकल नीड्स थी जिसकी वजह से किसी बंदे को जाके क्राइम करना पड़ गया। मिसाल के तौर पे आप एक एग्जाम्पल लें कि कोई शख्स है और उसके घर पे उसकी वालदा की तबीयत बहुत खराब है और वालदा शदीद बीमार है और उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास पैसे नहीं है और उसने वालदा का इलाज करना है और उसको ये पता चल गया है कि उसकी वालदा की अब तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि अगर उसने अपनी वालदा का इलाज नहीं करवाया तो डेफिनेटली उसकी वालदा इस दुनिया से चली जाएगी। सो अब इस कंडीशन में जब उसको नजर आएगा कि उसके पास पैसे भी नहीं है, उसकी वालदा की तबीयत भी बहुत खराब है और उसके पास कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो इस कंडीशन में ये एक एक पॉसिबल ट्रिगरिंग रीजन हो सकता है उस बंदे का चोरी करने का। बिकॉज इस कंडीशन के अंदर जब उसके पास पैसा कमाने का कोई जायज जरिया नहीं होगा, तो देर कैन बी सर्कमस्टांसेस दैट देर आर सर्टेन क्रिमिनल्स who will commit crime, but they are not criminals by their actual nature, you see. So यही इसी वजह से हम जब जो जज है पर्टिकुलरली जो कोर्ट रूम में जज बन के फैसले कर रहे होते हैं, और इसी तरीके जब हम एज ए पेरेंट भी अपनी बच्चों की बात को सुनने की कोशिश करते हैं, या आम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आम जिंदगी के अंदर जब हमारे सामने कई वाकयात ऐसे आएंगे जिसमें बज़ाहिर तो एक शख्स की हमें गलती नजर आएगी और हम उस गलती और एक किसी भी शख्स का कोई काम हमें बिल्कुल गलत नजर आएगा, लेकिन अगर हम उस बंदे से उसकी उसकी लॉजिक्स पूछें, उसके रीजंस, उसकी उस काम को करने की वजह पूछें, तो फिर हमें पता चलेगा कि किसी शख्स ने अगर किसी काम को किया था तो उसके पीछे रीजन क्या थे। सो फॉर दैट रीजन वी वुड नीड टू नो एग्जैक्टली कि अगर आप किसी सर्टेन काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने की या कोई बात जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे क्या सर्कमस्टेंसेस हैं जिनके अंदर रहते आपको कोई वो बात करने की जरूरत पेश आ रही है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से किसी वजह से बदतमीजी करता है, सो वो क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि जिसकी वजह से जो एक नॉर्मली ओबीडियंट बच्चा है और वो अपने पेरेंट्स से जाके बदतमीजी करने पे मजबूर हो जाता है किसी सर्टेन टाइम पे, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो पेशेंटली अपने बच्चे को सुने और एग्जैक्टली उस उस बॉटलनेक को समझने की कोशिश करें, और या उस रुकावट को समझने की कोशिश करें, उस ट्रैप को समझने की कोशिश करें जिसके अंदर हो सकता है आपका बच्चा फंसा हुआ, जिसकी वजह से मजबूरन वो बच्चा बेसिकली उस टाइम पे उसने बदतमीजी से बात की, जिसमें आपको तो लगा कि उसने बदतमीजी की, लेकिन उसके पीछे लॉजिक्स क्या थी, क्या वो सर्कमस्टेंसेस है जिनके अंदर होते हुए उस बच्चे को उस तरीके से जाके रिस्पॉन्ड करना पड़ा। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिसनिंग थ्रू हार्ट की, कि अगर आप वाकई अपने एक अच्छे स्पीकर और एक अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं तो यू विल हैव टू अप्लाई दिस प्रॉपर पॉसिबल लिसनिंग, और लिसनिंग की जो अप्रोचेस हैं इनको आपको प्रॉपरली जाके इन्फ्यूज करना होगा, प्रॉपरली जाके अप्लाई करना होगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग वेरी वेरी प्रॉपरली। तो हमने लिसनिंग की जो अभी हम लोगों ने कुछ अप्रोचेस पढ़ी। लिसनिंग की अप्रोचेस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिसनिंग थ्रू ईयर है, सेकंड लिसनिंग थ्रू आईज है, फोर्थ लिसनिंग थ्रू माइंड है, और थर्ड लिसनिंग थ्रू माइंड है, और फोर्थ लिसनिंग थ्रू हार्ट है। सो लिसनिंग थ्रू हार्ट के अंदर हम बेसिकली सिंपैथेटिक हो जाते हैं। हम सिंपैथेटिक होके हम सामने वाले बंदे के शू में एंटर होके उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई बंदा अगर कोई मैसेज दे रहा है तो किस वजह से दे रहा है, और वो क्या सर्कमस्टेंसेस हैं कि जिनके अंदर रहते किसी बंदे को कोई डिसीजन लेना पड़ा, जो कि एक नॉर्मल गो के अंदर हो सकता है वो डिसीजन वो वाला बंदा ना नहीं लेता, लेकिन उन सर्कमस्टेंसेस के कंस्ट्रेंट की वजह से किसी शख्स को वो काम करना पड़ गया जो कि वो करना नहीं चाहता था। कि हम सिर्फ तब समझ पाएंगे अगर हम बेसिकली लिसन थ्रू हार्ट को के प्रोसेस को जाके अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग है। जो लिसनिंग है उसके अंदर कई मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लिसनिंग के प्रोसेस को प्रॉपरली हम जाके इम्प्लीमेंट ना कर सकें। हम कई मरतबा किसी बंदे की बात को सुनना चाहते हैं लेकिन हम बात को सुन नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पे अगर आपको उर्दू और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस आती हैं और सामने वाला बंदा आपसे किसी इन दो लैंग्वेजेस के बजाय किसी तीसरी लैंग्वेज में बात करता है जो कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही,
सो ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन होगा कि जिसमें आप अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ, आप अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ सामने वाले जो स्पीकर उसकी बात को सुनना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस बैरियर विच इज ऑफ लैंग्वेज, यू आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड, यू आर अनएबल टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड जो कि सामने वाला बंदा आप जो स्पीकर है उसकी बात आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। आप जो सामने वाला बंदा है, अगर आप अपने आप को लें, आप एक फॉर एग्जांपल वो शख्स हैं जो कि लिसनिंग करना चाह रहे हैं और आपको बैरियर्स का सामना है, वो कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं? सो पहला इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, वो है लैंग्वेज का। आप पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ किसी बंदे की बात को सुनना चाहते हैं लेकिन अगर सामने वाले बंदे की लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, वो एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा है जो कि आपको समझ में नहीं आती, तो वो ये पहला आपका बैरियर होगा लिसनिंग का, और आप उसकी बात को समझ नहीं सकेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू वांट टू लिसन टू दैट पर्सन, बट बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू टॉक। तो इसी तरीके से जैसे हमने कहा कि लैंग्वेज समझ में नहीं आना, सेकेंडली ऐसी लैंग्वेज का यूज करना कि जो कि प्रॉपर नहीं है। अगर स्पीकर जो है वो कोई मैसेज हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है जो कि अब्यूजिव है, बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज को यूज करता है। सो भी अगर हम कोई शख्स बड़ा जो स्पीकर है बड़ा अच्छे तरीके वेल ड्रेस्ड है, बड़े जबरदस्त तरीके से उसने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, लेकिन जब वो बात कर रहा है तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है और वो इंतहाई नॉन कोऑपरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर भी जो अगर आप भले उसकी बात को सुनना भी चाहेंगे तो आप उसको शुरू में तो हो सकता है आप एक्सक्यूज करेंगे उससे, आप उसको बताने की कोशिश करेंगे कि आप उसकी बात को सुनना चाह रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट यू विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड और लिसन और बिकम पार्ट ऑफ दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो इट इज इम्पोर्टेंट एज अ स्पीकर के वो बंदा अपनी लैंग्वेज वो यूज करे, सबसे पहली बात समझ में आने वाली लैंग्वेज है, और दूसरी बात ये कि वो लैंग्वेज को जब भी यूज करे तो डिसेंट लैंग्वेज का जाके यूज करे। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि जो एक बैरियर बन जाता है लिसनिंग के अंदर के प्रोसेस के अंदर, वो नॉइज है। जब भी इन्वायरमेंट के अंदर नॉइज होती है, मैं कई मरतबा जो स्पीकर हमसे दूर बैठा होता है वो माइक के थ्रू से बात करने की कोशिश कर रहा है और माइक प्रॉपर अगर नहीं है, माइक में बहुत सारा डिस्ट्रॉक्शन आ रही है, तो भी बेसिकली हमें आवाज प्रॉपर तरीके से आएगी नहीं। अगर हम किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हम वी कैन नॉट सी स्पीकर, हम जो स्पीकर है सामने जो बोलने वाला बंदा है वो तो सामने हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन कुछ लाउड स्पीकर्स लगे हैं जिनसे हमें बेसिकली आवाज आ रही है, लेकिन अगर वो लाउड स्पीकर्स के अंदर से प्रॉपर्ली आवाज हमको नहीं आ रही होगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बैरियर होगा लिसनिंग का। और हम डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी वांट टू लिसन, हम उसकी बात को प्रॉपर्ली सुनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उन लाउड स्पीकर से आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ रही, तो उस बिना पर हम उस बात को सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और ये प्रोसेस जो कम्युनिकेशन का होगा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। एक और फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली हेल्थ का है। कई मरतबा आप एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर जैसे नॉइज हो गया, माइक के इश्यूज हो गए, लाउड स्पीकर के इश्यूज हो गए, आप कहीं किसी जगह बैठ के किसी की बात सुनना चाह रहे थे और मिसाल के तौर पे लाइट चली गई, लाइट के जाने की वजह से भी वो सामने वाले के बंदे का माइक जो था उसने काम करना छोड़ दिया। आप किसी जगह पे आप हो सकता है किसी जगह पे आपको आवाज प्रॉपर आ रही है, लेकिन आपको जिस जगह आप बैठे थे वहां पे अंधेरा हो गया। सो ये भी एक फैक्टर है जहाँ पे आपको आवाज तो प्रॉपर आ रही है लेकिन आपके लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट हो गई, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से आप एक बैरियर होगा लिसनिंग के अंदर और आप सामने वाले बंदे की बात को प्रॉपर्ली नहीं सुन पाएंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस की जो कि बैरियर्स होते हैं लिसनिंग के प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बड़ी मैटर करती है। अगर आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, अगर आपका फोकस बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड रहता है, तो भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन होगा कि आप सामने वाले बंदे की बात को प्रॉपर नहीं सुन पाएंगे, बिकॉज सामने वाला बंदा जो बात करने की कोशिश कर रहा होगा लेकिन वो बात प्रॉपरली आप तक नहीं पहुंच पाएगी, बिकॉज आप किसी भी उस बंदे की बात को प्रॉपरली सुनना चाहते भी होंगे, बट लेकिन क्योंकि आवाज बहुत जरा डिस्ट्रैक्टेड होगी और जो मैसेज है बेसिकली वो बहुत जरा इम्प्रॉपर फॉर्म के अंदर होगा, तो या मिसाल के तौर पे आपके अपनी माइंड के अंदर आप फोकस नहीं कर पा रहे चीजों के ऊपर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि भले हो सकता है कि जो स्पीकर है उसकी वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर अल्फाज का इस्तेमाल भी कर रहा है, लैंग्वेज भी प्रॉपर यूज कर रहा है, लेकिन आपके साथ इशू है कि आपकी चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ किसी भी मेडिकल इशू की वजह से या किसी भी जर्नल स्ट्रेस की वजह से आप
प्रॉपर्ली सो नहीं पाए थे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, इसकी वजह से आप कंसंट्रेशन नहीं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे मैसेज के ऊपर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसको हम बैरियर्स टू लिसनिंग कहेंगे, कि ये भी एक बैरियर है कि जिसकी वजह से हम उस लिसनिंग के प्रोसेस को हम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सो जो माइंड के साथ साथ आपकी जर्नल हेल्थ है वो भी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी अपनी जर्नल हेल्थ वो प्रॉपर नहीं है तो भी जो एक स्पीकर है हम उसकी बात को प्रॉपर्ली नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन को सुनने के लिए जा रहे हैं तो ना सिर्फ हम मेंटली पूरे तरीके से एक्टिव हों, बल्कि उसके साथ साथ हम मेंटली एक्टिव होने के साथ साथ हम अपनी जो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बिल्कुल प्रॉपर है, हमें टेम्परेचर नहीं हो रहा, या हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कफिंग नहीं हो रही, या बहुत हमें डायरिया नहीं हो रहा, ऑल दीज वेरियस रीजंस जिसकी वजह से हमें बेसिकली हमारी मोबिलिटी करनी पड़ी है, हमें बार मूव करना पड़ रहा है। सो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि बैरियर क्रिएट करते हैं लिसनिंग के प्रोसेस के अंदर, कि जिसमें आप चीज़ों को सुनना चाहते हैं बट ये एक्सटर्नल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके इस लिसनिंग के प्रोसेस को पूरा नहीं होने देते, कंप्लीट नहीं होने देते, और आप डिस्पाइट द फैक्ट कि आप चीज़ों को सुनना चाहते हैं मगर आप नहीं सुन पाते। सो ये मुख्तलिफ वैसे तो फैक्टर्स हैं जो कि बैरियर्स बन सकते हैं, उनमें कुछ सीधा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। सो विद दिस आई थिंक हमने आज के इस जो लिसनिंग का जो चैप्टर है इसकी जो जितने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमने इनको कवर कर लिया है कि लिसनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, कोई भी शख्स किसी की बात को सुने तो क्यों बात सुने, और जैसे अगर इसकी अगर किसी बंदे की अगर आप बात को नहीं सुनेंगे तो उसके बेसिकली क्या नुकसान हो सकते हैं। हमने सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस की बेसिकली अप्रोचेस टू लिसनिंग थी, कि जो अप्रोच जब आप किसी शख्स की बात को सुनते हैं तो क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं आप इनको अडॉप्ट करते हैं जिसकी बेसिस पे आप प्रोसेस ऑफ लिसनिंग को जाके आप अप्लाई कर रहे होते हैं। अप्रोचेस टू लिसनिंग के अंदर हमने लिसनिंग थ्रू ईयर्स को पढ़ा, हमने लिसनिंग थ्रू आईज को पढ़ा, हमने लिसनिंग थ्रू माइंड को पढ़ा, और हमने जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ा वो था लिसनिंग थ्रू हार्ट। फिर हमने बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग जाके डिस्कस किए कि जो लिसनिंग का प्रोसेस है उसमें बैरियर्स बेसिकली कौन कौन से हैं। सो उन बैरियर्स के अंदर हम लोगों ने लैंग्वेज को डिस्कस किया कि लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रीजन बन सकती है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। सेकंड जो फैक्टर था बेसिकली इन्वायरमेंटल नॉइज को भी हम लोगों ने स्टडी किया कि इन्वायरमेंटल नॉइज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिसकी वजह से आपको बेसिकली प्रॉपरली किसी की बात को आप नहीं सुन पा रहे होंगे। हेल्थ इश्यूज को हमने डिस्कस किया, हमने साइकोलॉजिकल इश्यूज को जाके डिस्कस किया। सो विद दिस आई थिंक हम अपने इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको ये जो हमने आज जितने पॉइंट डिस्कस किए तमाम के तमाम पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, और इस अगर समझ में नहीं भी आए तो आप इस लेक्चर को दोबारा रिपीट करके सुनिएगा, बिकॉज हमने कोशिश की कि सिंपल तरीन तरीके से इनके जो कम्युनिकेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको जाके हम डिस्कस करें। बिकॉज अगर आपने इन पॉइंट्स को प्रॉपर्ली जाके ग्रैब कर लिया तो आप एग्जाम के अंदर भी इनको इन तमाम पॉइंट्स को उसी तरीके से एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाएंगे जैसे जिस तरीके से भी हम लोगों ने इन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया। सो ऑन दिस नोट लेट्स कंक्लूड द टॉक, and inshallah I'll see you in the next lecture.